द प्रीवियस क्लास रे हम देखते द न्यूक्लियर फिजिक्स एवरेज लाइफ और डीके कांस्टेंट एंड अर्थिला कौन तुम हाफ लाइफ पीरियड द रिलेशन ना कि तो प्रथम थिला हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ और कि डीके कांस्टेंट t is equal to 0.693 t average half life lambda and half life that is 0.693 by decay constant then t average लिख पारिबा तो average time period केला कहते हैं 1 by lambda अर्थात there is a relation that is equal to half life is equal to कहते हैं 1 by lambda है 0.693 of t average clear है तो आज हम देखिए the next article that is the activity है तो next हम देखिए activity what do you mean by activity? The activity means the disintegration per second. It is the number of atoms disintegrated per unit time. Activity it is the number of atoms. It is the number of nuclei disintegrated per unit time. Disintegrated per unit time. Clear? So this is a number. It is a number, but radioactivity is a number. It is the number of nuclei disintegrated per unit time. How much number of atoms disintegrated per unit time? It is denoted by A for activity. It is denoted by A. Clear? So it is denoted by A. So that implies A is equal to क्या गला? Suppose dn number of atoms disintegrated in unit time, है ना? मन करो and dn कहते this is the number of atoms disintegrated per unit time है तो activity कहते पहले में that is the number of atoms disintegrated per unit time जेहेतु with the increasing time this is decreases number of atoms by nuclei decreases तो A is equal to हमें कौन लिख परिवा minus dn by dt तो this is the number of atoms disintegrated per unit time अर्थात if dn is the number of disintegrated with respect to time dt dn number of disintegrated in time dt तो activity is equal to जोटा कि हमें कहते rate of है this is तो देखिए suppose we know that the n is the number of atoms after a time instant कहते n is equal to n0 e to the power minus lambda t. Clear? So we know that at any instant of time t, the number of atoms by nuclei left कहते हैं the n is equal to n0 e to the power minus lambda t. तो वर्तमान बाहर करो differentiate है ना with respect to t. जब हमें डिफरेंशिएट करवा विथ रेस्पेक्ट टू टी ताल कौन पाइबा हमर एक्टिविटी वाला माइनस dn by dt ताले एट कौन पाइबा ताले इफ ही डिसइंटीग्रेट आगो ताले एट कौन अछि n ताले dn by dt क्लियर इज इक्वल टू एटा केते गला d by dn सॉरी d by dt ऑफ केते गला n0 e to the power minus lambda t ताले व्हाट इज इट्स वैल्यू So n0 is taking outside n0 dy dt of e to the power minus lambda t है ना तो that is equal to कितने गलानी
তাহলে n0 yes তাহলে আর ডেরিভেটিভ কেতে না e টু দা পাওয়ার minus lambda t into derivative of minus lambda t, that is equal to minus lambda. Clear? So this is n0 is equal to this one. তাহলে আমি দেখিবা the minus is taking outside এপটু নিয়ে আসো তাহলে dn left side কে নিয়ে আসো তাহলে dn by dt minus এটাকে তাহলে n0 e to the power minus lambda t into lambda. Clear? তাহলে এটা কি তাহলে this is equal to n0 e to the power minus lambda t কেতে পারছিলা n0 e to the that is equal to n lambda তাহলে n lambda হলা তাহলে the activity is equal to n lambda হলা তাহলে activity কোন পাইলে that is equal to n into lambda अर्थात the activity depends on कहाँ पर एक रहेला that is the decay constant एक रहेला decay constant the activity depends upon एक रहेला decay constant lambda और रहेला क्या n the number of atoms left at that instant जो समय में activity बाहर करे जाऊँ the number of atoms at that instant. Clear? So the activity of a substance depend at any instant of time depends upon that is the decay constant and the number of atoms at that instant but the number of atoms in the sample. Hela? So A is equal to L lambda. Next one देखिए it can be expressed in a other way. Suppose we know that n is the n0 number of atoms at any instant but at initially t is equal to 0 n the number of atoms left at after time t তাহলে we know that তাহলে এটি কোন দেখো তাহলে when at an instant তাহলে that is equal to a0 কেতে গেল তাহলে a0 is equal to কেতে হলো n0 into lambda আমি কোন জানিছি the activity is equal to n into a lambda the lambda is decay constant and n is at time number of atoms in that instant so when t is equal to 0 তাহলে এটা কত গেল a0 তাহলে atoms কত আছে n0 into lambda তাহলে age after time t তাহলে activity কত হবে তাহলে number of atoms কত আছে n তাহলে n by lambda তাহলে a0 is equal to n0 lambda a is equal to n lambda তাহলে we get তাহলে a by n0 কত গেল তাহলে a by a0 is equal to n lambda by n0 into lambda so that is equal to n by n0. Clear? So this is the another form of the activity so that is equal to a by a0 is equal to n by n lambda. Next we know that n by n0 kete previous class re koichi we know that n by n0 is equal to 1 by 2 yes তাহলে 1 by 2 to the power n তাহলে এটা কত হইব তাহলে a by a0 similarly we can write a by a0 is equal to 1 by 2 to the power n. Clear? এটি n টা কোন কইছিলা তাহলে total time divided by half life ହେଲା তাহলে here n is equal to কত এটি total time divided by half life ହେଲା तो এইভাবে ভাবে আমি অ্যাক্টিভিটি को एक्सप्रेस करि परिबा अर्थात we can calculate the activity of a radioactive sample. Clear? तो नेक्स्ट हम देखिबा how to measure the activity हैला the units of activity write down units of activity. Clear? The units of activity যেহেতু activity को আমি কেন মেজার করিবা in three different units are there গোটা হলো becquerel bq লিখ परिबा और डला Rutherford एटा सब स्मॉल लेटर हला Rutherford RD
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟୁରି କ୍ୟୁରି क्यूरी CI है तो there are 3 units to measure the disintegration per second अर्थात the activity of a radioactive sample आम 3टा यूनिट व्यवहार करूँ गोटे बेक्यूरेल गोटे रदरफोर्ड आउ गोटे किए दैट इज द क्यूरी तो प्रथम देखिए बेक्यूरेल केते है तो 1 बेक्यूरेल कहले कौन बुझा इफ 1 एटम्स बा 1 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट इन 1 सेकेंड जदि गोटे सेकेंड रे गोटे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुए तले आम कौन कहवा बेक्यूरेल तो 1 बेक्यूरेल इज इक्वल टू 1 बेक्यूरेल इज इक्वल टू 1 है डीपीएस 1 डीपीएस डीपीएस माने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीपीएस है डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है डीपीएस क्लियर तो 1 बेक्यूरेल मीन्स 1 डीपीएस इफ 1 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड इन 1 सेकेंड तो आम कौन कह 1 बेक्यूरेल देन 1 रदरफोर्ड तो आम के 1 रदरफोर्ड आरडी ना इफ 10 to the power 6 number of atoms disintegrated in 1 second अर्थात 10 to the power 6 डीपीएस ताले गोटे सेकेंड रे जदि 10 to the power 6 नंबर ऑफ न्यूक्लियर भांगिला ताले हम तक 1 रदरफोर्ड देन 1 क्यूरी ताले 1 क्यूरी के तरह कहबा 3.7 into 10 to the power 10 डीपीएस हला जदि गोटे सेकेंड रे 3.7 into 10 to the power 10 नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटेड ताले हम तक कौन कहबा 1 क्यूरी बोली कहबा हला तो देयर आर 3 यूनिट्स बेक्यूरेल रदरफोर्ड and Curie है तो बेक्यूरेल के लिए 1 dps 1 atoms disintegrated per second if the 10 to the power 6 number of atoms disintegrate है तब कोई रदरफोर्ड if the 3.7 into 10 to the power 10 dps अर्थात atoms disintegrated in 1 second तब कोई 1 Curie तो देखिए रिलेशन नेक्स्ट रिलेशन तो 1 Curie इज इक्वल टू कितना है 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 6 है ना एटा क्या dps so this can be written as 3.7 into 10 to the power 10 into 1 dps so 1 dps की that is equal to becquerel so we can write 3.7 into 10 to the power 10 becquerel है ना so this is 3.7 into 10 to the power 6 becquerel again we can write 1 Curie is equal to कितना 3.7 into 10 to the power 10 ना 10 to the power 10 1 Curie ला 3.7 into 10 to the power 10 dps तो 10 to the power 3.7 10 to the power 10 into 1 dps 1 dps है becquerel तो 3.7 into 10 to the power 10 next 1 Curie is equal to 10 to the power 10 dps आपको अभी यदि रदरफोर्ड एक्सप्रेस करिया ताले केते हो 3.7 रदरफोर्ड है 10 to the power 6 ताले और रिमेनिंग है 10 to the power 4 into 10 to the power 6 dps ताले 10 to the power 6 dps है रदरफोर्ड ताले we can write 3.7 into 10 to the power 4 रदरफोर्ड है ना ताले 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 4 रदरफोर्ड ताले this can also be written as ताले এটা কোন লিখে পারিবা that is equal to this can be written as 37 into 10 to the power 3 এটো 10 নিয়ে আসলে 37 रदरफोर्ड 1 Curie अर्थात आपको डिवाइड कर दियो ताले 1 by 10 to the power 3 Curie is equal to कितना गला 37 रदरफोर्ड এটা 10 to the power -3 that means 1 milli Curie ताले 1 milli Curie is equal to कितना गला 37 रदरफोर्ड this is the another relation 1 milli Curie is equal to 37 रदरफोर्ड क्लियर तो ये थिला हमर न्यूक्लियर फिजिक्स एबे देखिवा न्यूक्लियर रिएक्शन हला तो न्यूक्लियर रिएक्शन नेक्स्ट हम देखिवा न्यूक्लियर रिएक्शन तो न्यूक्लियर रिएक्शन का
नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आम कौन बुझा तो आम आगु जाने केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंस कौन केमिकल रिएक्शन रे कौन हुए दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग ए पार्ट बट टेक द रोल इन कोटी न्यूक्लियर रिएक्शन तुम कौन हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गुड़िक कौन करती अंशग्रहण करती किंतु न्यूक्लियर रिएक्शन कौन हम द रिएक्शन इन व्हिच ओनली द न्यूक्ली टेक पार्ट एटी जिते सब आम नवा सब गुड़िक न्यूक्लियस नवा नो इलेक्ट्रॉन इज देयर है तो द न्यूक्लियर रिएक्शन in nuclear reaction the nuclei of the elements in nuclear reaction the nuclei of the elements nuclei of the elements the nuclei of the elements take the role but contributes in the reaction in the nuclear reaction the nuclei of the elements are considered एठी केवल आम न्यूक्ली मानक नवा नॉट द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर क्लियर तो इट वाज फर्स्ट गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1919 the first man that is the Rutherford succeeds first nuclear reaction Rutherford succeed the first nuclear reaction first nuclear reaction that is when that is the discovery of जोड़ा को proton कहा जाए that is the Rutherford succeeded the first nuclear reaction to produce the proton ताले कौन कले से गोटे नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन न्यूक्ली द नाइट्रोजन न्यूक्ली देरे कौन करा गला अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू हीलियम 2 4 नाइट्रोजन हला 7 14 हला आफ्टर स्ट्राइकिंग तले एडी के कौन पाइले से दैट इज योर फ्लो एडा की हला 7 2 9 फ्लोरीन 14 4 18 एंड proton है H11 then oxygen 8 है 17 तो this is a nuclear reaction it was given by Rutherford कौन कले से प्रथमे गोटे नाइट्रोजन न्यूक्लियस सहित आउ गोटे न्यूक्लियस जोटा कि किए अल्फा पार्टिकल व्हिच इज ए हीलियम न्यूक्ली है तो गोटे नाइट्रोजन एटा थिला नाइट्रोजन ताधरे कौन करा गला हीलियम टाको स्ट्राइकिंग कले करिया फल कौन पाइले fluorine and this compound nucleus again break down splitted into oxygen and this is your H11K that is the proton H11 proton clear so this is the first man who succeeded the nuclear reaction that is when he strikes the alpha particle on a nucleus nitrogen nucleus then called by oxygen nucleus and proton this is a nucleus this is a nucleus this is a nucleus this is also nucleus this is also nucleus अर्थात एटा कि प्रोटॉन जोटा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैला तले ऑल दीज आर द न्यूक्लियस ए रिएक्शन भितरे प्रत्येक each and every particle the pratyek are the nucleus so this reaction is called nuclear reaction हैला तले nuclear reaction ले कौन हुए only the nuclei are considered but nuclei take part the role the next time देखिबा the schematic diagram of the nuclear reaction that is the first है कि that is the target the incoming particle I
when strikes on a target, this is the schematic diagram. ताले गोटे इनकमिंग पार्टिकल कौन कला गोटे टार्गेट थियर जेतले बड़े हबो सेते बेले वी प्रोड्यूस ए कंपाउंड न्यूक्लियस and this compound nucleus is unstable and it breaks down to produce the product nucleus plus outgoing radiation, outgoing particles and some energy. Hala? This is the schematic diagram of the kahara nuclear reaction. Hala? Tale eta ki hai? That is the incoming particle. Eta la incoming particle. This is your incoming particle. This is your target nucleus. Eta la target nucleus जहाँ ऊपर हमें स्ट्राइकिंग करू से target nucleus. This is your compound nucleus and this is the product nucleus. All are the nucleus and this is the outgoing particle and this is the energy because a q value or energy. Hala? So this is your nuclear reaction. Hala? This is the format ba schematic diagram of the car nuclear. Gote nuclear reaction le etiki jinsa rahibo. Hala? Then hame dekhitile ethi simple nitrogen 714 sorry alpha He24. This is your eta ki rela incoming particle plus target ala ki ethi 714 target eta la target 714 produces the compound nucleus of fluorine 9 7 2 9 18. This is the fluorine, this is the compound nucleus and it produce a outgoing outgoing particle ki oxygen 8 17. This is the oxygen and the outgoing particle ki proton. So this is your nuclear reaction. So in the nuclear reaction our data side godala LHS side out RHS side mojitala that is the compound. तो बर्तमान देखिबा ए जो इनकमिंग पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल q वैल्यू दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिलीज्ड ऑलरेडी. तो इन द न्यूक्लियर बाय केमिकल सॉरी एटा हला तो न्यूक्लियर रिएक्शन ले कोन हुए आफ्टर रिएक्शन सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड हला सम केसेस एनर्जी रिलीज्ड ऑलरेडी और सम केसेस एनर्जी कोन हुए रिक्वायर्ड मध्य हुए. देखिबा को जगह एनर्जी रिलीज होची और को जगह एनर्जी रिक्वायर्ड हमें पर देखिबा. तले प्रथम देखिली आउट इनकमिंग पार्टिकल और लगे आउटगोइंग पार्टिकल. तो ए गुडी को कोन हे पारे इनकमिंग पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल एटा अल्फा हे पारे. तो अल्फा इट इज सिंबल 24. दिस इज अनदर वन पार्टिकल. प्रोटॉन हे पारे प्रोटॉन दैट इज योर सिंबल अला हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रोटॉन हे पारे. आउ कोन हे पारे दैट इज न्यूट्रॉन मध्ये हे पारे दैट इज 01 न्यूट्रॉन हला. आउ कोन हे पारे बीटा प्लस हे पारे बीटा प्लस कोन कहतिला +1 0 हे पारे. बीटा माइनस हे पारे कोन थिला एठी E-1 0 हे पारे. आउ कोन हे पारे गामा हे पारे गामा नो पास नो चार्ज गामा में हे पारे. आउ कोन हे पारे ड्यूटेरियम हे पारे 1 2 ड्यूटेरियम हे पारे हला. These are the different particles हला नहीं. तो इनकमिंग पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल्स क्लियर. आउट थिला कि तुम्हारा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. दिस इज द एंटी न्यूट्रिनो आउट हला न्यूट्रिनो हला. तो these are the incoming and outgoing radiations by outgoing particles. तो बर्तमान देखिबा different types of तो इन द न्यूक्लियर रिएक्शन जेता न्यूक्लियर रिएक्शन अब देखिबा कोन सम लॉज आर कंजर्व्ड हला नहीं. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन
law of conservation of a nuclear reaction. Law of conservation of nuclear reaction. Laws of conservation in nuclear reaction. Clear? The law of conservation of nuclear reaction. The law of conservation कौन? हमें आगुरी जानी चाहिए conservation of, that is the conservation of energy, conservation of कहरा momentum. सिर्फ देखी बता nuclear reaction ले कौन सो कंजर. प्रथम वाला conservation of charge. First वाला that is the conservation of charge. Conservation of a charge. Clear? In a nuclear reaction, conservation माने remain same. Charge on both sides are conserved अर्थात remain same. एक रहला conservation of charge, दो रे. Conservation of a mass number. Conservation of a mass number. Mass number. प्रथम है conservation of charge, conservation of mass number, then 10. आउ कौन conservation? ना conservation of energy. Conservation of a energy. Energy मध्ये conserve on both sides. Conservation of energy. Conservation of energy. Then sorry. Conservation of a momentum. Conservation of a momentum. Conservation of momentum. Hala. So these are the conservation, but these quantities are conserved in the nuclear reaction. Hala. So nuclear reaction ले कौन conserve रहिबो? Charge conserve रहिबो. Nuclear reaction ले कौन conserve रहिबो? Mass number रहिबो. Conserve कौन रहिबो? Energy and momentum. All are conserved during the nuclear reaction. Clear? The next देखिए different types of nuclear reaction. Types of nuclear reaction. ହେଲା ताले conservation of charge रे कौन कहा गला? Charge conserve रहिबो एवं mass number conserve रहिबो. जेमते हम देखुतिले suppose nitrogen एटा थिला कोन और nitrogen 14 when incoming particle केते थिला 24 produces fluorine ହେଲା produces oxygen produces hydrogen एटा कोन थिला proton. त बर्तन देखो हमर बर्तन देला कोन this is the alpha particle and this is your nitrogen. ए दुईटा कोन हबो रिएक्ट करिवो. ताले whenever a alpha particle incident by strikes the nitrogen ताले कोन सृष्टि हबो ताले फ्लोरीन एवं कंपाउंड न्यूक्लियस हला फ्लोरीन तापर ऑक्सीजन देन प्रोटॉन. हमें केमि जानिबा देखो ताले श्री कोन कहला हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोन कहला ना चार्ज कांस्टेंट. चार्ज यदि कांस्टेंट बता लेफ्ट साइड रे बर्तन देखो दुईटा चार्ज हला के 2 7 चार्ज कहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हला के 7 ये हला 2 ताले 2 + 7 इज इक्वल टू केते गेला 9. ताले एठी कोन होबो 9. चार्ज हला 9 दैट मींस एटॉमिक नंबर हला 9. यदि एटॉमिक नंबर हला 9 ताले एटा कोन हे गेला फ्लोरीन. नेक्स्ट तो मास नंबर 14 4 18 ताले यस एटा हला 4 + 14 दैट इज इक्वल टू 18. ताले मास नंबर केते होबो 18 इज देयर हला. ताले वर्तन पाइला 7 2 9 9 तो इट इज ए फ्लोरीन. एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन हला 9 तो तापर मास नंबर 14 4 18 देन एडी कोन सृष्टि हला प्रोटॉन. द प्रोटॉन हला केते 1 1 प्रोटॉन हला चार्ज हला 1 मास नंबर हला 1. तले बर्तन देखो एडी कोन कहले से उभय पटरे चार्ज समान रहबो. जदि एठी 1 हला तले एठी केते होबो त 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8. देन वी कैन फाइंड आउट 8. तले एठी हला के ऑक्सीजन. तले ऑक्सीजन जदि एठी हला तले मास नंबर केते रहबो देखो एठी अछि 18 एला 7 तले 1 तले 18 - 1 इज इक्वल टू 17. यस वी गेट हला
तो क्वेश्चन ले कौन देथिबो क्वेश्चन ले फिल अप द ब्लैंक्स देथिबो आइदर दिस देथिबो एटा को माइनस कर एटा काटिथिबो किबा एटा देथिबो एटा को माइनस करथिबो तल तमे जोटा को हेले बाहर करि पारिबो बाय यूजिंग द कंजर्वेशन हला ऊपरटा हला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर कंजर्वेशन ऑफ mass number is conserved और तळटा हला conservation of charge conservation of charge हला तले भले गोटे क्वेश्चन आसे परीक्षा रे हला फिल अप द ब्लैंक्स कम जे कोन जगह रे गोटे गैप देथिबो तले ऊपरटा हला कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर ऊपरडा का समान रहइबो उभय रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड तळपट्टा रहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस एटॉमिक नंबर मध्ये समान रहइबो उभय पटे हला देन क्यू वैल्यू हमें परे बाहर करबा एठी क्यू वैल्यू बा एनर्जी केते रिलीज होबो कोन हो सेटा परे कथा हला तो दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन तले वर्तमान देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन types of nuclear reaction what are the different types of nuclear reaction प्रथम देखिबा इलास्टिक स्कैटरिंग प्रथम हला इलास्टिक स्कैटरिंग एक रहला इलास्टिक स्कैटरिंग व्हाट डू मीन इलास्टिक स्कैटरिंग कहले में कोन बुझिबा हला इलास्टिक माने समान रहइबो और स्कैटरिंग माने हला नो रिएक्ट करिबो स्कैटर हे अर्थात वर्तमान देखो एठी इलास्टिक स्कैटरिंग रे कोन हबो तले इनकमिंग पार्टिकल जहा थिबो आउटगोइंग पार्टिकल मध्ये शेयर रहइबो आउ कोन हबो ना इनकमिंग रे एनर्जी सेति रहइबो आउटगोइंग रे मध्ये एनर्जी सेति रह तले इलास्टिक स्कैटरिंग रे तले इनपुट पार्टिकल एंड output particle input particle and output particle are same and also same energy हला तो इलास्टिक स्कैटरिंग रे कोन रहइबो इनकमिंग पार्टिकल जहा थिबो आउटगोइंग पार्टिकल मध्ये शेयर रहइबो आ एनर्जी मध्ये समान रहइबो इनकमिंग रे जहा आउटगोइंग पार्टिकल एनर्जी मध्ये शेयर फॉर एन एग्जांपल हम देखिबा हला दैट इज तले इनकमिंग पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम 24 one bombarded with gold हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे हम जानि छै व्हेन इट इज bombarded with gold तले गोल्ड हला 7197 देखो तले एटी कोन बर्तन देखो न्यूक्लियर रिएक्शन अनुसार हमें बाहर कर परिबा एतिग्रु कंप्लीट कर परिबा न्यूक्लियर रिएक्शन टा 7 एटा लागते 70 + 2 दैट इज इक्वल टू 72 हला नी एंड दिस कैन बी से कोन कहै छै एटी कोन दे इलास्टिक स्कैटरिंग रे कोन कहै छै इनकमिंग पार्टिकल एंड आउटगोइंग पार्टिकल समान रहइबा तले इनकमिंग पार्टिकल कोन अछि हीलियम दिस इज योर आई एंड दिस इज द टारगेट हला तले आउटगोइंग पार्टिकल मध्ये शेयर रहइबा अर्थात आउटगोइंग पार्टिकल कोन ले सही हीलियम 24 हला इलास्टिक स्कैटरिंग कोन कहला इनकमिंग पार्टिकल जे आउटगोइंग पार्टिकल मध्ये से तले इनकमिंग पार्टिकल अछि हीलियम आउटगोइंग मध्ये हीलियम हला तापरे कोन होबे ठी तले जदी एठी हीलियम हला तले 29 एटा कोन थला 70 से सही 70 रहला तले 70 ले सही गोल्ड 170 हला एवं एठी कोन आउ कोन होबो ना एठी एटा ला के आउटगोइंग पार्टिकल जहा इनकमिंग पार्टिकल शेयर एवं आर एनर्जी जहा आर मध्ये एनर्जी शेयर हला नी उभय पार्टिकल सहित एनर्जी मध्ये समान हबो ताकू कहला इलास्टिक स्कैटरिंग माने नो चेंज एठी जहा छी एठी शेयर रहइबो इनकमिंग पार्टिकल जहा आउटगोइंग पार्टिकल शेयर रहइबो आउ कोन रहइबो इलास्टिक आर एनर्जी जति की आर एनर्जी मध्ये सति हला तो एटा कहला इलास्टिक स्कैटरिंग तो नेक्स्ट हम देखिबा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग सेकंड हला इनइलास्टिक
इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग रे कोन हबो ना स्कैटरिंग मींस इनपुट पार्टिकल जहा हबो आउटगोइंग पार्टिकल से हबो नो रिएक्शन। तले इनकमिंग जहा आउटगोइंग से स्कैटरिंग ता माने कोन हला एटा ओटे एटम थिला हमें अल्फा गोल्ड फॉइल ले कोन कराउतला एटा अल्फा पार्टिकल गला देन इट इज स्कैटर्ड। तले ठीक कोन हबो तो जहा इनकमिंग से आउटगोइंग इनकमिंग पार्टिकल जहा आउटगोइंग पार्टिकल से जेहेतु एटा स्कैटरिंग अछि बट इट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक माने दे हैव also are same and also same energy एठी कोन हबो and not same energy हैला and have no same energy एठी हबो and have no same energy जेतु इट इनइलास्टिक अछि तो एठी कोन हबो एनर्जी समान रहबो नाही। अर्थात इनकमिंग पार्टिकल जहा अछि आउटगोइंग पार्टिकल शेयर रहबो किंतु आउटगोइंग पार्टिकल रे एनर्जी कोन हबो कमी जिवो हैला। ताले इनकमिंग पार्टिकल एनर्जी जहा अछि आउटगोइंग पार्टिकल रे एनर्जी कोन हबो कमी जिवो त एटा कहला इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ताले देखिबा when a proton incoming particle ala proton is bombarded with lithium 37 ताले कोन हबो ताले when a proton is bombarded with lithium ताले कोन हबो प्रथम कोन कहला it is a scattering means input particle जहा output particle से इनपुट पार्टिकल हला प्रोटॉन आउटगोइंग मध्य प्रोटॉन यस प्रोटॉन आउटगोइंग प्रोटॉन वाला हला इनकमिंग जहा आउटगोइंग मध्य से रहला स्कैटरिंग। सेकंड कोन कहला ना इट इज इनइलास्टिक तले बर्तन एठी कोन कहला एठी यदि प्रोटॉन हला तले एठी प्रोडक्ट के हो ना सही तले एठी हला 1 3 4 यदि एठी 1 एठी 3 3 हला के लिथियम हला बट डिफरेंस कोन आगर तो जा थिला एटा सेरेला ना तले एठी कोन कहै छी एंड हैव नो सेम एनर्जी तले ये प्रोडक्ट ये प्रोटॉन एनर्जी जहा ये प्रोटॉन एनर्जी से नुह। अर्थात तले व्हेन ए प्रोटॉन स्ट्राइक्स ऑन लिथियम इट प्रोड्यूस ए लिथियम बट जो प्रोटॉन टा बाहरिला से प्रोटॉन एनर्जी कोन हबो समव्हाट लेस देन का अपेक्षा इनकमिंग तने यार एनर्जी गला कोडे ए लिथियम नै गला तने लिथियम ऊपर कोन हला इसेंट्रिक मार्क अर्थात लिथियम एठी कोन हला एनर्जेटिक हे गला तने एटा कहला इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनपुट पार्टिकल इज इक्वल टू आउटपुट पार्टिकल इनपुट हला प्रोटॉन आउटगोइंग मध्य प्रोटॉन किंतु दे हैव नो सेम एनर्जी समान हबो ना। हेलो हाँ नमस्कार हाँ अच्छा तले एटा हे गेला प्रोटॉन तले प्रोटॉन होय बोम्बार्डेड विथ का से कोन कहले लिथियम तले कोन पाइला में तले सही अल्फा पार्टिकल पाइले हला एठी जहा थिला एठी शेयर रहला इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग किंतु दे हैव नो सेम एनर्जी तले ए पार्टिकल इनकमिंग पार्टिकल एनर्जी जहा आउटगोइंग पार्टिकल एनर्जी से हबो नाही हला नी एट से काइंड ऑफ कला इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्लियर। तले गोटाला इलास्टिक स्कैटरिंग आउटला इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो थर्ड टाइप रेसला कैप्चर सिंपल कैप्चर थर्ड रेला सिंपल कैप्चर हला तो सिंपल कैप्चर रे कोन बर्तन देखो सिंपल कैप्चर रे जथा इनकमिंग पार्टिकल टा टारगेट धरे बाडे हबो तो टारगेट कोन करे ताको एब्जॉर्ब करनबो एक्सेप्ट करनबो हला तले एठी इनकमिंग पार्टिकल एठी आउटगोइंग पार्टिकल समान होतला किंतु नाही तले एठी कोन हबो टारगेट न्यूक्लियस ऑब्जर्व बा कैप्चर द कोटा इनकमिंग पार्टिकल तले इन दिस केस हला टारगेट न्यूक्लियस हला captured the incoming particle capture the incoming particle and produces a product hela tale in this case target nucleus captured the kahaku na incoming particle hela ami the example dekhiba tale barsan it kon hoba suppose proton the proton is striking by bombarded on the carbon nucleus C12 tale it kon hoba dekho
ताले प्रोटॉन इज स्ट्राइक इनकमिंग पार्टिकल के प्रोटॉन प्रोटॉन का में कहा पर बाड़ेले कार्बन न्यूक्लियस पर बाड़ेले कार्बन न्यूक्लियस पर बाड़ेला फल रे कोन कहले से सिंपल कैप्चर कोन हो ना टारगेट न्यूक्लियस कैप्चर्ड द इनकमिंग पार्टिकल कैप्चर करनला जैसे इनकमिंग पार्टिकल कैप्चर करनबो ताले केते रहला 6 के 7 ताले नाइट्रोजन हे गेला ताले 12 के 13 ताले कोन सृष्टि हला नाइट्रोजन एटा हला सिंपल कैप्चर ताले व्हेन the target incoming particle strikes a target nucleus the target nucleus capture the incoming particle ताले एठी कोन बाहरिबो ना गामा that is the एटा का देला 0 0 हला ताले we release the gamma ताले ए हला तमरा सिंपल कैप्चर the next हम देखिबा fourth type that is the disintegration fourth type हला disintegration फोर्थ टाइप है डिसइंटीग्रेशन ले कौन हुए ना इनकमिंग पार्टिकल जते टारगेट धरे बाडे हबो सेते कौन हबो तो टारगेट बाडे सला परे एठी कौन हबो प्रोडक्ट एंड आउटगोइंग उभय कौन हबो अलग हबो हला इन दिस रिएक्शन हला द इनकमिंग एंड द टारगेट बा आउटगोइंग पार्टिकल outgoing by how in this reaction product and outgoing particle are different हला तो लेठी कोन हबो तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस आउ कोन रहला आउटगोइंग पार्टिकल आर डिफरेंट कहां पे क्या ना टू दैट ऑफ इनकमिंग पार्टिकल एंड टारगेट और इनकमिंग जहा थिबो एठी अलग सृष्टि हो पूरा भिन्न हो हला तो एटा कहला डिसइंटीग्रेशन भांगी की नुवा प्रोडक्ट सृष्टि हो एवं नुवा प्रकार आउटगोइंग पार्टिकल सृष्टि हो अब कहला डिसइंटीग्रेशन इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट एंड आउटगोइंग पार्टिकल आर डिफरेंट टू दैट ऑफ target and nucleus particle target and incoming particle हला incoming particle क्लियर तले डिसइंटीग्रेशन ले कोन हबो उभय प्रोडक्ट और आउटगोइंग ता अलग हबो का अपेक्षा तमरा टारगेट और इनकमिंग पार्टिकल तले एठा हम देखिबा different types of disintegration हबो प्रथम देखिबा there are different types of disintegration first हला प्रथम हला देखिबा अल्फा प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन तो अल्फा प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन को ना अल्फा में कौन करिबा इंसिडेंट करे एटा इनकमिंग पार्टिकल हला अल्फा प्रोटॉन हला तमरा आउटगोइंग पार्टिकल अर्थात हमें देखिबा तले अल्फा हीलियम 24 when bombarded with by strikes on boron 5 10 तल कोन बर्तन देखो हलानी तल से कोन कहै छै अल्फा न्यूक्लियस को हमें जे बोरन धरे बाडेबा तले कोन बाहला प्रोटॉन कहै छै H11 प्रोटॉन वाला यदि प्रोटॉन H11 बाहला ताले आउटगोइंग पार्टिकल सॉरी प्रोडक्ट पार्टिकल कोन प्रोडक्ट न्यूक्लियस नाइटी गेला 527 रे एक गला और 6 हेले के रहबो कार्बन ताले ठीक है 10 सारी 14 एक गला 13 ताले बर्तन देखो इनकमिंग पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल अलग है ना नहीं है एवं टारगेट और प्रोडक्ट दुटा अलग है ना नहीं है ताले एटा कहा जाए डिसइंटीग्रेशन हला तो इनकमिंग आउ टारगेट उभय मध्ये चेंज हो जिवो प्रोडक्ट आउ कोन एटा आउटगोइंग ताले ए जहा ए शेयर रहबो नहीं तो एटा कहला डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन ताले एटा कहला अल्फा प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन मींस दिस इज द अल्फा एंड दिस इज योर प्रोटॉन हला ताले में दी अल्फा स्ट्राइक करिवा पाइबा कोन प्रोटॉन सेकंड जस्ट प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन तब रसला प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन तले हमें कौन बढ़ेबा प्रोटॉन करिबा कहां से बढ़ेगा टारगेट
तो टार्गेट मन कर हला से बोरॉन 5 मन कर 11 हला दैट इज द आइसोटोप बोरॉन तले कोन हो बैठी तले बर्तन कोन बाहरिबो अल्फा अल्फा बाहरला अल्फा हीलियम 2 4 अल्फा बाहरला यदि अल्फा बाहरिबो तले 5 के 6 तले 2 गला एट रहला 4 4 हेले के रहबो 4 बेरियम तले दैट इज इक्वल टू 4 एला 8 के हां 11 4 12 एला 4 गले 8 हला तले एटा हे गला प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन को कहता है हला तले एटा थिला प्रोटॉन प्रोटॉन एटाला प्रोटॉन बाहरला कोन अल्फा तले कहला प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन क्लियर तो नेक्स्ट आसला तमरा न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन हला तले हमें न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करिवा पाइबा कोन अल्फा देखो न्यूट्रॉन तले न्यूट्रॉन हला 0 1 बोरॉन 5 10 हला तले कोन पाइबा देखो तले कोन पाइबा अल्फा अल्फा हला हीलियम 2 4 प्लस तले केते गला 5 0 5 तले एपट रहला केते 2 2 गला पर 3 3 हला के लिथियम लिथियम 10 है 11 4 गला 7 तल दिस इज योर प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन हला तल ये हला के प्रोटॉन एटा हला के सॉरी एटा हला न्यूट्रॉन अल्फा न्यूट्रॉन एपटा के अल्फा न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन एटा कहला न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन हमें न्यूट्रॉन स्ट्राइक कले हला डी बोरॉन टारगेट दिहरे पाइले में लिथियम औ हीलियम हला तले उभय प्रोडक्ट एंड outgoing are different to that of target and incoming. The next asla disintegration by deuterons. Disintegration by deuterons, but deuteron out like tomorrow bahla ke helium of alpha deuteron deuteron out la alpha disintegration deuteron and alpha disintegration तले ठेला के ड्यूटेरन कोन कहितली H12 ड्यूटेरन H12 तले H12 प्लस बोरॉन 5 10 हला तले कोन बाहरिबो अल्फा देखो 5 के 6 अल्फा अल्फा हला के 2 4 into 3 हला 10 2 12 312 3 2 6 3 अल्फा पार्टिकल्स आर released हला तल 3 into एति की बाक लिख परिबो दिस प्लस 4 प्लस हला एटा कहला ड्यूटेरन डिसइंटीग्रेशन तापर असला तमरा डिसइंटीग्रेशन बाय फोटॉन नेक्स्ट असला फोटॉन फोटॉन और गामा डिसइंटीग्रेशन फोटॉन फोटॉन और गामा न्यूट्रॉन फोटॉन एंड ड्यूटेरॉन न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन फोटॉन और एटा लगे फोटॉन मींस के गामा फोटॉन फोटॉन रेडिएशन गामा और एटा को न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन बा फोटॉन न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन कहि परिबा तल दैट इज इक्वल टू गामा प्लस बेरियम बेरियम वाला 4 9 तल कोन हो देखो सृष्टि हला कोन न्यूट्रॉन 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 हला 0 1 तार हला कोन 0 1 तल सही 4 4 8 4 8 हला बुझबेला तल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कहरा डिसइंटीग्रेशन हला तल हम देखले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन पहले न्यूक्लियर रिएक्शन हला तो न्यूक्लियर रिएक्शन प्रथम देखले कोन हमें प्रथम हला इलास्टिक स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग हला द्वितीय कोन कहली इन इलास्टिक स्कैटरिंग तीन कोन कहली
सिंपल कैप्चर 4 कौन कहले डिसइंटीग्रेशन है डिसइंटीग्रेशन these are the 4 types of nuclear reaction एठी कौन हम इनकमिंग या आउटगोइंग पार्टिकल्स समान होवा सहित एनर्जी समान रहबो एठी इनकमिंग या आउटगोइंग पार्टिकल समान रहबो किंतु आउटगोइंग पार्टिकल रे एनर्जी कमी जिवो एठी कौन हम सिंपल कैप्चर हलाडी तो न्यूक्लियस कौन टारगेट न्यूक्लियस कौन करिवो इनकमिंग पार्टिकल को कैप्चर करने की नुआ प्रोडक्ट तैयार करिवो एवं एठी कौन हम डिसइंटीग्रेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन हला गोटे लाके अल्फा प्रोटॉन डिसइंटीग्रेशन प्रोटॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन तीन लेला न्यूट्रॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन 4 न्यूट्रॉन अल्फा चापरेला डिसइंटीग्रेशन बाय ड्यूटेरॉन अल्फा डिसइंटीग्रेशन 5 रे थिला that is the gamma photon so gamma and the neutron disintegration these are the different types of disintegration जोथिरे कोन हबो both incoming and outgoing particle समान अलगा हबो टारगेट एंड प्रोडक्ट मध्ये अलगा रहबो हला बुझबैला नै तो दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन नेक्स्ट क्लास रे देखिबा हमर एटी कोन थिला तो एटा कोन थिला I plus T is equal to कोन थिला that is equal to F and this is equal to P plus O plus Q तो Q कौन तो नेक्स्ट क्लास से देखिबा आमे बता I T F P O विषय जानिले दिस इज इक्वल टू Q वैल्यू ए Q वैल्यू कौन आमे नेक्स्ट क्लास से देखिबा गुटे न्यूक्लियर रिएक्शन रो Q वैल्यू केते हला थैंक यू।